کمپیوٹر کریش کر گیا تھا اور پھر مجھے ایک جگہ جانا تھا. آپ سے تو بات کرنا ہے. پھر آپ سے تو ہم تو ہے ہی فرینڈ, میری فرینڈ لوگ بھی فرینڈ ہے. اور کل تو امی کو بھی سنائے. بہت ایسا سوال ہے, بہت ایسا چیز ہے. ابھی جو بولے شاید ہے کہ مسلم ڈرتے ہیں, مطلب یہ سب کوئی اس سے نہیں ڈرتے. ہم تو بالکل نہیں ڈرتے. ہم تو فٹافٹ سوال کرتے, جواب مانگتے ہیں کہ کا صحیح کا غلط ہے. ہم لوگ کل ہی آج دن کا بات کر رہے, مطلب جو صبح دن تھا, جو دن سے رات ہوا, ہم لوگ وہاں پہ سب کوئی آئے ہوئے تھے گیسٹ. ہم لوگ ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے, سب کو یا بیٹھ کے بات کر رہے تھے, تو ایسے ہی کچھ ٹاپک چھڑا تو ہم لوگ سوال جواب کرنے لگے. تو ہم لوگ سوال کرنے لگے, ہم کرنے لگے کہ اچھا بتائیے, مولانا لوگ بھی تھے ایک دو ٹھو پڑھے لکھے, تو ان لوگ کو پوچھنے لگے کہ مرنے کے بعد حور ملے گی تو صحیح ہے کہ غلط ہے؟ تو بولے کہ ہاں صحیح ہے. تو ہم بولے کہ کیوں حور ملے گی؟ تو بولے کہ کتنا حور ملے گی, 72 حور ملے گی. یہ سب چیز میں کچھ ہم لوگ کو پتہ ہی نہیں. میرا خالہ بول رہی 72 حور ملے گی. ہم بولے ہاں 72 حور ملے گی. تو بولے حور لوگ کیا کرے گا وہاں پہ, حور لوگ کرے گی کیا, تو حور لوگ کیا کرے گی؟ تو پھر آپ لوگ کو تو سنتے ہیں صحیح, آپ لوگ بولتے ڈنگے ڈنگے, تو اسی میں بولنے لگے یہ ڈنگے ڈنگے کون چیز ہوتا ہے؟ ہم بولے ہم کو نہیں پتا, تم لوگ سن لو کیا ہوتا ہے. تو وہاں پہ حور مطلب یہاں دنیا میں عورت کو مطلب مرد کو 4 شادی کرے گا, پھر مرنے کے بعد پھر ان لوگ 72 حور ملے گا. پھر دنیا میں بھی عورت سے 4 شادی کرے گا, تو ان لوگ کے ساتھ یار میں بھی ایسا مطلب کیوں وہی ہوتا ہے اس سب کے ہے. آتے ہی, میرے کمپیوٹر کا ستیہ ناش کیوں ہو جاتا ہے یار اس کے آتے ہی؟ وائی مجھے بتاؤ. پھر اسٹریم یارڈ کریش کر گیا آج یار, ریئلی آج کمپیوٹر نہیں کریش کیا تو اسٹریم یارڈ کریش کر گیا یار. یہ بدتمیزی ہے بھائی نہیں, وہ روشنی کی باتیں جو ہے نا, وہ تمہارا اسٹریم یارڈ ہجم نہیں کر نہیں پاتا, اس وجہ سے ایسا ہو رہا. یار. یہ تو بہت غلط بات ہے یار. ہاں روشنی دوبارہ بتاؤ, 72 حوریں ملے گی, ذرا بتاؤ دوبارہ. سوری میرا کمپیوٹر تمہارے آتے ہی کریش کر جاتا ہے روشنی. تمہاری روشنی سے میرا کمپیوٹر تاب نہیں لا سکتا تمہاری روشنی کی. ابھی صحیح ہے نا؟ ہاں اب صحیح ہے فی الحال, آگے دیکھتے کیا بنتا ہے, آگے کا پتہ نہیں, ابھی صحیح ہے. اچھا, ہم نا پھر اپنے نوسے بھائی سے ہم کوشچن کیے کہ مان لیجیے مرنے کے بعد آپ لوگ کو 72 حور ملے گی, تو اتنا اچھا وہ جواب دیے نا کہ سیلوٹ کر رہے وہاں پہ. ہم بولے مرنے کے بعد آپ کو 72 حور ملے گی وہاں پہ, اور حور کے ساتھ نا یہ ہوگا وہ ہوگا, جو ہوتا ہے سب کرے گا. تو میرا نوسے بھائی کیا جواب دیے نا کہ 72 حور اللہ پاک کو مبارک, ہم کو تو اپنا بیوی ہی چاہیے. کیونکہ دنیا میں جب ہم اپنا بیوی کے ساتھ ہم اچھا سے ٹائم نہیں اسپینڈ کر پاتے ہیں, کام میں ہر چیز میں بیزی رہتے ہیں, دنیا داری میں بال بچے میں, ہم تو اس کے ساتھ اچھے سے پیار بھی نہیں کر پاتے, بات بھی نہیں کر پاتے ہیں. اور وہاں مرنے کے بعد ہم کو حور نہیں چاہیے. جب وہاں اتنا فری ہی ملے گا, اتنا آزادی ملے گا, تو وہاں ہم کو اپنا وائف چاہیے, اپنی بیوی چاہیے, جس کے ساتھ ہم بات کر سکے, پیار کر سکے, اور اپنا اچھا سی زندگی اور اچھا اس کے ساتھ جی سکے. کیا کرنا 72 حور کو, مطلب وہی سب. تو بتائیے کتنا اچھا وہ بولے کہ 72 حور لے کے کیا کرنا ہے. اور بہت ایسے سوال ہے. اچھا میرے امی صبح بیچاری اتنا ہی مسلمان مولانا لوگ جو اتنا ہارڈ کر دیے ہیں, اتنی بیچاری میری امی کمزور ہے, پھر بھی ڈر کے مارے صبح اٹھے گی, تہجد پڑھے گی, اس کے بعد پھر سورہ یاسین, پھر پڑھتے 6 بج جائے گا, پھر اٹھے چائے پیے گی, اس کے بعد پھر چاش کا نماز پڑھے گی 10 بجے تک, اس کے بعد پھر جا کے سوتی ہے. اتنا وہ محنت کرتی ہے, اتنا وہ کرتی ہے, اور سب چیز اس کو پتہ چلے گا کہ یہ سب کچھ بھی نہیں ہے, تو پھر کوئی فائدہ نہیں, زندگی کو جی ہی نہیں سکتی ہے. اور مسلمان لوگ میں کیا دیکھتے ہیں, نماز کے پیچھے اتنا جلدی بھاگے گا کہ بھائی جوہر کا ٹائم ہو رہا ہے, عصر کا ٹائم ہو رہا ہے, مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے, نماز پڑھی. جتنا لیڈیز لوگ پڑھ لے گی نماز, اس کے بعد بیٹھ جائے گی چگلی کرنے کے لیے. تو پھر کا فائدہ؟ ایسا نماز پڑھ کے, جب نماز پڑھ رہی ہے پھر چگلی بھی کر رہی ہے. سچائی کسی میں نہیں ہے, ایمانداری کسی میں نہیں ہے, کسی کے لے کے کسی کا دل میں نا انسانیت نہیں ہے, اچھائی نہیں ہے, کسی کے لے کے سوچ اچھا نہیں ہے, صرف اس کے لیے غلط, اور نماز پڑھنا ہے, قرآن پڑھنا ہے, ماننا ہے.
मतलब इस्लाम यही सिर्फ सिखाता है। हेलो, आप लोग हाँ कुछ जी, हाँ बोल जी। रहे हम तो आपकी सुन रहे हैं, आपकी सुनते हुए हम तो चुप कर जाते हैं, हम क्या करें? आप जिस तरीके से आप एक्सपोज़ कर रही होती हैं, हम तो बस चुप करके सुन रहे होते हैं। नहीं, एक्सपोज नहीं कर रहे हैं, बहुत सारा ऐसा सवाल है दिमाग में घूमता है कि ये भाई क्या है, ये क्या है, इस्लाम में इतना कुछ बोला गया है। अच्छा, नबी पाक के बारे में कि उनका परछाई नहीं था, ये हकीकत है? किस इंसान का परछाई नहीं था? वो नबी पाक का परछाई नहीं था, उनका आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं हुआ जिसका परछाई नहीं था। बुलशिट है। एवरीथिंग इज़ अ बुलशिट। यही मौलाना लोग नबी पाक को इतना ही सुंदर बना दिया गया है कि कहना नहीं, कि उनका परछाई नहीं था, उनके पसीना में बदबू नहीं था। और हम लोग भी कितना खुश होते थे कि नबी पाक जब अच्छा जब बोलते थे ना सब कोई कि नबी पाक न शादी किए है जितना विधवा औरत लोग से शादी किए है, इसलिए किए हैं कि उम्मत के लिए एक मिसाल बने हैं कि कल होके अगर कोई औरत विधवा हो जाती है, चाहे तो डिवोर्स किसी का यार हो जाता मिसाल के है। लिए एक आधा बंदा होता है ना, हाँ, तो मिसाल के लिए इतनी ढेर सारी। इतने सारे ढेर सारी तो पता है नहीं, किसी को नहीं पता है। ये तो आप लोग के थ्रू पता है, हम लोग को तो एक ठो दो ठो सिर्फ तीन ठो ऐसे पता है, थोड़ी पता है कि 11 कभी कहाँ इन लोगों से बैठते कि 11 शादी की हैं। वो बहुत बाई चांस कहीं कोई मौलाना से सुनने को मिल जाता है। तो वही उन तो कह लोग रहा हूँ, तब इतनी ढेर सारी। और आप लोग से तो हर कुछ पता चला कि विधवा भी कैसे विधवा हुई, तो वो तो जंग किए, फिर जंग करने के बाद फिर वो गुलाम बनी, तब ना उससे शादी किए थे। अच्छा, वो जो बहू से शादी की, ये चीज तो हम लोग किसी को नहीं पता। जब हम लोग बताए ना हम घर में कि ऐसा ऐसा बात है, तो लोग मान नहीं रही। फिर आपका सारा जितना वीडियो है वो सारा को छोटा छोटा, अच्छा जफर एड्रेस को वाला समझ में लोग कैसे लग रहा है कि चलो ये तो एगो कार्टून है, ये कार्टून में लोग बना के पैसा कमा रहा। पर जब आपका वाला है ना, हम इतना मेहनत किए, सारा चीज को छोटा 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 सबको सेव करके रखे और फिर दिखाए कि देखिए यहाँ पर ये ना कुरान में लिखा हुआ, कुरान से साबित करा जा रहा है। तब फिर इन लोग को कुछ कुछ समझ में आया। मतलब इतना सारा झूठ, इतना झूठ, पूरा शुरू से झूठ। अच्छा, बोला जाता है कि हाँ जब नबी पाक तो मिसाल कायम किए, तो अभी कोरोना में जो इतना सारा लड़का लोग मर गया, उसकी कोई किसी की 2 साल में शादी, किसी का 3 साल का शादी, किसी का 1 साल का, तो फिर काहे नहीं मुसलमान लड़का लोग आगे बढ़ा कि चलो हम तो जितनी कोरोना में जिसका जिसका हस्बैंड गुजर गया है उसे लड़की से ही हम शादी करेंगे। उस सब में तो कहीं नहीं दिखता है अच्छाई, खाली इन लोग का कुछ नहीं, एक दूसरे का टांग खींचना, वहाबी सुन्नी का, सुन्नी वहाबी का, बस इससे और कोई मतलब नहीं है। और बस हिंदू लोग को एकदम छी 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 अस्तगफिरुल्लाह, ये शिर्क है, ये गुनाह है, ये वो है वो है। और वही लोग का खाना, वही लोग का लेना, वही लोग का देखना, फिर वही लोग को फिर मतलब पीठ पीछे बुराई करना। सिर्फ बुराई के सिवा और कुछ भी नहीं है इन लोग के पास। उस दिन जो वाला वीडियो जो साहिल भाई दिखा रहे थे, वो जो एक मौलाना, जो एक हस्बैंड था, उसकी वाइफ जो पूरा मोमिना थी, नकाब लगाई हुई थी, जो मेहंदी लगा रही थी मॉल के बाहर में, तो वो हाँ दिखाए दिखाए थे थे। ना। हाँ हाँ, वो वीडियो में तो आप तो बोल रहे थे कि देखो ये एंड तक अड़ा रहा कि भाई मेरी मर्जी मेरी बीबी, तो उसमें एडम भाई बोले कि हम रहते तो चमाटा मार लेते, बाद में जो होता सो होता। तो ये वीडियो जब हम दिखाए अपना फैमिली में, अपना ग्रुप में, अपना फ्रेंड सर्कल में, तो हम लोग में ज्यादातर क्या आंसर निकला कि अगर इस जगह हम रहते ना, तो हम तो नकाब पहले खोल के फेंक देते कि तुमको इतने ही इस्लाम प्यारा है तो नहीं चाहिए ऐसा तेरा इस्लाम। भाई तुम कौन होते हैं मेरा बीबी को बोलने वाला कि तुम नकाब नहीं लगा के हाथ पकड़ के किसी से मेहंदी नहीं लगवा सकती है? तुम होता कौन है? मतलब तुम लोग का मर्जी चलेगा, तुम लोग के हिसाब से ही हम लोग जिंदगी जिएंगे, तुम लोग जैसा बोलेगा वैसा करेंगे। अब तुम लोग क्या करता है, तुम लोग बीवी रहते हुए शादी कर लेता। अच्छा कैसे, अच्छा पाकिस्तान की जो लड़की लोग आती है, और एडम भाई कितना बार, एक बार में हजारों बार उन लोग से क्वेश्चन करते हैं कि तुम लोग खुद सोच के देखो कि लड़की लोग आती है तो बोलते, उन लोग से पूछते कि शादी जो 3 शादी 4 शादी करता है ये सही है? तो हाँ सही है, ऐसे करके उन लोग एकदम स्वीट स्वीट करके जवाब देती है। कैसे सही है? भाई मेरा हस्बैंड तो कोई लड़की का तारीफ कर दे तो हम तो तन बदन में आग लग जाता है। ये मेरा नहीं है, बहुत मेरे फ्रेंड लोग में भी है कि मेरा हस्बैंड सिर्फ मेरा है भाई, कोई मेरे हस्बैंड को भाई छू देख भी नहीं सकता है, और मेरा हस्बैंड किसी का तारीफ भी नहीं कर सकते है। मेरे सिवा किसी का कैसे आप तारीफ कर दिए?
तो क्यों फिर नहीं कर सकते? कर सकते हैं भाई, हाँ, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? कोई और अच्छी लगेगी तारीफ कर लेंगे, क्या मसला? वो तारीफ अलग हुआ, एक दूसरा एक हिसाब का जो तारीफ होता है ना, वो तो नहीं होगा। हम लोग तो खैर तारीफ बर्दाश्त भी कर हिसाबों सकते के साथ होता है। हैं। कैसे नहीं है ना भाई, तारीफ हिसाब का एक तो मतलब गलत थिंकिंग से, हाय कितना मस्त लग रही है, अरे एक तो हाँ अच्छी है, एक तो होता है हाँ नहीं तो अच्छी मैं तेरी तारीफ, कोई अच्छा हो तो उसकी तारीफ कर देनी चाहिए, कोई मसला नहीं है ऐसा। पर अब मैं आपकी तारीफ तारीफ कर रहा हूँ तो मेरी बीवी बोलेगी मैं गलत तारीफ की, तो नहीं अच्छा तो तो नहीं लगेगा ना? तारीफ की जा सकती ये है, कोई मसला नहीं। अच्छा, आप हमको इसका आंसर दीजिए, तारीफ एक होता है थिंकिंग के हिसाब से भी तारीफ होता है कि नहीं, कि हाँ किसी को ऐसे देख के बोलना हाँ अच्छी लग रही है, आप अच्छे हैं, आपका सोच अच्छा है, आप इंटेलिजेंट है, ये अलग हो गया। और किसी को गलत नियत से देख के जो तारीफ होता है उसमें और इसमें डिफरेंट होता है। क्या भाई गलत क्या नीयत बात से कर देखने वाली तारीफ है? तो वो गलत नीयत से देखना तो हाँ अलग बात है। नीयत की बात नहीं हो रही, तारीफ की बात हो रही है। हाँ, जैसे एक मस्त लग रही है, अच्छी लग रही है, तो उसमें ना वो उसका अटेंशन गलत रहता है कि भाई तो गलत नियत से रखता है। तो वो चीजें हम्म, बता रहे हैं कि हम तो अपने हस्बैंड को हम लोग तो भाई बांट नहीं सकते, तो उन लोग कैसे ये वाला चीज को एग्री कर लेती है, और बहुत सारी करते हुए जो आ रही है उन लोग का हिम्मत का दाद देना पड़ेगा कि कैसे बर्दाश्त कर लेती है। मेरा हस्बैंड हमसे 1 घंटा बात नहीं करे या फोन में बिजी रहे, ऐसे सिर्फ मेरे सोच नहीं है, बहुत कोई का सोच है, मेरा और भी मेरे घर की बहन लोग का भी है कि मेरा हस्बैंड अगर किसी के साथ बिजी हो जाए तो हम लोग को बर्दाश्त नहीं होगा कि आप किससे बात कर रहे हैं। और उन लोग पूरा का पूरा अपना दूसरी औरत को दे देती है, और उन लोग को फर्क भी नहीं पड़ता, रोसी रहती है, उसी जीतती है। यार जबरदस्त यार अपना रोशनी जी, और थैंक यू सो मच। यार रोशनी साहिल साहब जिस तरीके से इस्लाम को एक्सपोज करती है, मेरा नहीं ख्याल हमने आज तक किसी और फीमेल को नहीं देखा नहीं, हो। बड़े बड़े जबरदस्त तरीके से करती है बाबा, बैंड बजा देती है रोशनी तो। रोशनी जी, आप जो बैंड बजाती हैं ना, बहुत कम लोग ये वाले बैंड बजाते हैं, तो थैंक यू कि आप बैंड बजाती हैं। और और हम ऐसे नहीं कि हाँ छुप के छुपा के सरेआम करते हैं, सरेआम पूछते हैं कि हाँ भैया इसमें गलत है, इसको आप लोग साबित करिए। अच्छा, अभी जो पहलगाम में जो ये हुआ अटैक, उसमें क्यों नहीं कोई मौलाना लोग आके एक बार भी फतवा रखा कि भाई वहां पे जो अटैक हुआ वो गलत हुआ, इस सब में तो कुछ नहीं बोलेगा। अभी 2-4 दिन पहले, 1-2 दिन पहले एक मौलाना फतवा कर रहा है कि जब शादी होता है तो वहाँ लड़की लोग का खाना का टेंट अलग होना चाहिए, लड़का लोग का अलग होना चाहिए। क्यों अलग होना चाहिए? जब कहीं मॉल जा रही है तो वहां तो लड़का लड़की अलग नहीं है। अच्छा मॉल तो बताइए, जहाँ हज करने जा रहे हैं वहां पर ही तो सब एक ही साथ है, लड़का लड़की सब एक साथ। फिर यहाँ खाना की चलती थी एकदम, कुछ भी लोग मतलब दबाना है लड़की लोग को, जिंदगी जीने ही नहीं देना है, हर चीज में बस रुकावट दबाहट। कम से कम हम तो ये चीज सोचते हैं कि कम अच्छा, से ये बड़ा मेजर पॉइंट से खड़ा किया साहिल कि हज हाँ। में लड़का लड़कियां इकट्ठे हैं, इवन दो के इन्होंने कपड़े भी नहीं पहने होते, हम्म। सिर्फ चादरें लटकाई होती हैं, और एक दूसरे के साथ ना चिपक के धक्का लगे होते मुक्की हैं। होती है, धक्का मुक्की भी एग्जैक्टली होती है। और वहां पे लड़कियां बीच में हैं। सर ये तो जलालत है ना सर? बिल्कुल है। अच्छा गलत है तो यहाँ पे जो लड़की लोग है तो कम से कम उन लोग को तो समझ में आना चाहिए। ठीक है लड़का लोग को बड़ा इस्लाम का ठेकेदार बन रहा है, चाहे जबरदस्ती का है, जो अगर सच्चाई आप इतने सारे लॉजिक देते हैं, अरे कॉमन सेंस भी कुछ नाम का चीज है कि नहीं, कि समझो उसको, बूझो उसको कि हाँ सही है ये गलत है। जैसे आप लड़की लोग से कितना बार लड़की लोग से क्वेश्चन करते हैं कि बताओ यहाँ पे ये गलत है ना, तो उन लोग बोलो सामने से हाँ गलत है, इस्लाम में ये चीज गलत है, ठीक है हम इस्लाम मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, हम नबी को मानते हैं, पर हाँ ये गलत है। आप एकदम पूरा अच्छा तरीका से एकदम कर देते साबित कि बोलो कि हाँ नबी पाक में नालत है, ये चीज किए नहीं तुमने, तो पहले बोल देगा, और लड़की लोग भी बोल देती है। और जब आप साबित कर देते हैं उस टाइम हकलाने लगते हैं। ये क्या होता है? सच्चाई से आओ भाई, सच्चाई होना चाहिए, जिगरा होना चाहिए, हर चीज को मानो। अगर मेरा बाप, हम अपना अब्बू के बारे में बोले, मेरा अब्बू अगर गलत है तो अगर हमको वो चीज दिख गया सबूत के साथ तो हम बोलेंगे हाँ है गलत। ये नहीं कि मेरा बाप है तो हम वहां छिपाएंगे, ये तो डबल फेस और दो मुहा सांप अलग तो काम होने ही नहीं चाहिए। सच्चाई में रहना चाहिए, सच्चाई में बात करना चाहिए, जो सच है हाँ सच है, साबित होने के बाद। नहीं पता है वो अलग बेहतरीन। बात है। अच्छा रोशनी जी, जरा एक सेकंड होल्ड कीजिएगा।
یار پلکا داس, میں نے تمہیں پہلے تمیز سے کہا کہ یار تم نان مسلم ہو, چلے جاؤ, تم سوری کہہ کے چلے گئے, پھر تم نور کے نام سے آئے, اب تم آصف کے نام سے آئے ہو, کیوں جھوٹے ناموں سے آ رہے ہو بھائی؟ بولو کیا مسئلہ کیا ہے بھائی, بولو. مسٹر داس آصف کے نام سے آئے ہو, ٹائم ویسٹ کرنے آئے تھے. بین کیا یار میں نے اس کو. جی روشنی سوری, یہ بندہ جو ہے نا اس کو بڑی چل ہو رہی تھی, اس کو میں نے پرائیویٹ چیٹ میں بولا ہے کہ یار تم چلے جاؤ, تم نان مسلم ہو. پھر نور کے نام سے آ گیا, پھر اس کے بعد اب یہ آصف کے نام سے آ گیا کہ کیا ہمیں پاگل سمجھتا ہے گدھا. عجیب ہی چل ہے بعض گدھوں کو. یعنی میں کہتا ہوں یار ساحل صاحب, بعض مجھے فیل ہوتا ہے کہ یار قرآن کبھی کبھی صحیح بھی تھا, یہ کچھ نان مسلم انتہائی گدھے ہوتے ہیں. جان بوجھ کے کرتے یار, جان بوجھ کے کرتے, وہ کیا آبسیشن ہے ان کو کیا معلوم اس طریقے سے کرنے کا. یعنی بلا وجہ ہی یہ مجھے آگے کیا بتائے گا جی, ہاں بھائی قرآن میں ہاں بت تھے, 5 منٹ کے بعد جے شری رام کہہ کے چلا جائے گا. بھائی تم آئی کہ میرا ٹائم ویسٹ کرنے, اتنی سیریس ٹاک ہو رہی ہے آج. وہ روشنی جی اسلام کو اتنا ایکسپوز کر رہی ہیں, بیچ میں چل لگی ہوئی ہے اس کو, 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ آیا. جی روشنی جی, یہ ایک ذہن ہے, ذرا میں اس سے بھی گپ شپ لگا لوں, کیونکہ اللہ تو بتوں سے بڑا پیار کرتا تھا. آپ یہیں پہ رکیے, میوٹ کر لیجئے, وائل ذرا یہ زین صاحب سے میں بات کر لوں, یہ بھی بڑے. ہاں جی زین صاحب, بولو زین. ہلو. ہیلو, ہاں جی. مسلمان ہو نا ابھی تک؟ جی ابھی تک مسلمان ہو؟ یس. اوکے, میں نے تمہاری آواز بڑھائی ہے, تمہاری آواز بہت کم آ رہی ہے. ہاں یار, اللہ بتوں سے اتنا پیار کیوں کرتا تھا؟ ایک منٹ آواز بڑھاتا ہوں. ہاں آواز بڑھاتا ہوں. ارے بڑی بڑھا بڑی دی آواز ہے میں بات نے. کرو. او بھائی بڑھا دی ہے, بات کرو. کیا یار قسم سے ٹائم ویسٹ نہیں, چلا گیا اس کا مائک اور کیمرہ, وہ اس نے پرمیشن ہی ہٹا دی ہے. تو جی کچھ سپر کی چاٹا لیتے ہیں, کیونکہ بی ایم صاحب کہتے ہیں ماشا لو اللہ الحمد ڈو اللہ یار کیا لکھتا ہے تو؟ مسلمین رسول المرتدین ساحل صلی اللہ علیہ وسلم پریئر بی اپون ہم و خدائے مومنین ابائے امہ آدم صلی اللہ تعالی اکبر العظیم ٹوگیدر. دھنیہ واد امت بھائی, آپ سر میری ٹنگ ٹوسٹر ہیں بیسیکلی. ناخن سے کہتا کہتے ساحل ایک بار وہ ہو جائے, پردیسی پردیسی جانا نہیں, ہمیں چھوڑ کے ہمیں چھوڑ کے. ایک دم پرفیکٹ آواز آ رہی ہے بھائی. ڈیلی جی کہتے ہیں I really wanted to be there on the live but couldn't make it because I am traveling in France. Still sending all my love and respect to Aram and Sahil bhai. Truly proud of everything you both are doing. Keep going strong. I am with you always, no matter the distance. Sir, thank you Didi ji. بہت بہت دھنیہ واد, appreciate it. انکت گرگ صاحب کہتے ہیں bro, what's the matter of iron in the Quran? Is it true? سر آئرون کا میٹر آپ ذرا مجھے بتائیں گے نا, مسئلہ پھر بتائیں گے. مارننگ صاحب, تھینک یو سو ویری مچ فار دی سپر اسٹیکر. پیا جی, روشنی جی از کرشنگ اٹ, کلنگ اٹ, الحمدللہ. یار یہ ہندی ہے پیور, کون پڑھے گا؟ ساحل بھائی پڑھیں گے؟ میوٹ پہ بھائی میں پڑھ دیتا ہوں. روشنی ایک دم توڑو پھوڑو ہے, اس کی سپورٹ کرنا ضروری ہے. بے شک بے شک, تبھی تو توڑو پھوڑو روشنی یہاں پہ موجود ہے. ونیت شرما کہتے ہیں ایڈم پاجی تے ساحل جی کڈو بس چٹکا وچ رکھو, سارے لوگ اپنا فرض نبھائیں. ست شری اکال.
होप तुसी रिमेंबर मी, इनकलाब जिंदाबाद सर, इनकलाब जिंदाबाद, धन्यवाद। लियो जी कहते हैं रोशनी तुम्हारा नाम क्या है? बसंती नहीं, जिसका नाम रोशनी है, रोशनी फैला रही है, वो रोशनी फैला रही है, रोशनी रोशनी फैला रही है। द मॉर्निंग साहब कहते हैं 40 लाख मुल्लास होस्ट टैग टू 1.4 बिलियन, व्हाई नॉट यंगेस्ट अपोस्टेसी फी नेली हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट। सर आपने भी अल्लाह की तरह आयतों में बताया है। इंडिया जी कहती है रोशनी जी चेंज्ड बिकॉज शी लिव्ड विद हिंदूज। बेहतरीन हो गया सर। तुरुत साहब कोई आए हैं, अगर मुसलमान है सर अपने माइक और कैमरे को परमिशन दे, वरना आपको ऐड नहीं कर सकता मैं। मुसलमान ही है वो। हाँ, अगर माइक और कैमरे को परमिशन नहीं देंगे तो मैं ऐड नहीं कर सकता उन्हें। नाखून से खत्ता साहब कहते हैं आज मैंने बैक करके देखा, मेरे तन्नों की वजह से साहिल ने म्यूट पर तारीफ का, यार क्या लिखते हैं यार, साहिल भाई पढ़ेंगे वैसे। यार फैन क्लब साहब प्लीज छोड़ दें यार। नाखून से खत्म भाई कह रहे हैं, देखे हो हाँ यार, साहिल साहब आगे, हाँ आगे आगे। आज मैंने बैक करके देखा, मेरे तानों की वजह से साहिल ने म्यूट पर तारीफ का इंतजार नहीं किया, अगर ऐसा चलने दिया मैं तो जॉबलेस हो जाऊंगा। ताड़ी खैर हो जाए, खैर हो जाए। और नाखून से खत्ता ने 20 मेंबरशिप्स भी दी थी, थैंक यू सो वेरी मच। मिस्टर त्रुथ साहब मुसलमान हैं आप? जी हाँ, कल भी बात हुई थी हमारी। कल भी बात हुई थी, किस टॉपिक पे बात हुई थी? वो नबी पाक के जिन वाले टॉपिक पे हमने बात की थी थोड़ी सी। नबी पाक के किस टॉपिक पे? जिन वाले टॉपिक पे मैं बोल रहा था कि वो सवारी का मतलब कुछ और भी हो सकता है। अच्छा, तो आज का टॉपिक वो तो आपको बता दिया मैंने, एक शॉर्ट भी डाल दी हुई है। आज तो हम बात करें कि अल्लाह जो है ना बुतों से प्यार करता था एक जमाने में। और नहीं, मैं आपकी दलीलें सुन चुका हूँ, उन पे एग्री भी कर चुका हूँ, मुझे कुछ और बोलना है। तो आप मानते हैं जैसे कि अल्लाह बुतों से प्यार करता था एक जमाने में? हाँ, आपने प्रूव कर दिया, मैं मानता हूँ। तो आप मानते हैं कि अल्लाह बुतों से प्रेमी, बुतों का प्रेमी था फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम? जी माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो भाई फिर इसके बाद अब अगर अल्लाह इतना बुत प्रेमी था तो इसके बाद क्या रह जाता पीछे? कुछ भी तौहीद नहीं तो रह गई भाड़ जाता। में, इस्लाम छोड़ दें फिर। और क्या। हाँ, मुझे इसी बारे में बात करना था। जैसे आदम एडम साहब, आप हो काफी नॉलेजेबल बंदे, लेकिन जो कॉमन बंदे होते हैं मेरी तरह, जैसे रोशनी थी जो अभी बोल रही थी, अपनी बातें बता रही थी, इनके हमारे लिए भी एक कॉमन प्लेटफॉर्म होना चाहिए, चाहे वो कहीं टेलीग्राम का ग्रुप हो जहाँ पे हम अपनी बातें वगैरह रख सकें, बात कर सकें कॉमन मौजू के बारे में, जो कि जिस दीन को हम जीते आए हैं उस बारे में। आप तो जैसे सर बहुत सारे एक्स मुस्लिम चैनल्स हैं जो कॉमन लेवल के ऊपर बात करते हैं, तो आप उनके पास जाइए और वहां पे अपनी सारी ये बातें रखें। एंड मैं इसीलिए कहता हूं कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती और ना ही पांचों जी उंगलियां जी बराबर होनी चाहिए। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को कहता हूं कि भाई साहब आप लोग उन चैनल्स पे जाएं, एक तो उनकी सपोर्ट होएगी कि वहां पे आप लोग जाएंगे, उन्हें बिल्कुल। पता लगेगा आप लोग आ रहे हैं। दूसरा, कॉमन लेवल के ऊपर बातें जो करने वाले एक्स मुस्लिम चैनल्स है वहां पे जाएं और वहां पे जाके बातें रखिए सारी की सारी। इट्स गोना हेल्प एवरीवन। अगर आप मुझे कहें कि मैं उस कॉमन लेवल पे बात करूं तो भाईजान कॉमन लेवल पे सारी बात कर रहे हैं। आई डोंट वांट टू डू दैट, जी जी। आई वांट टू। हाँ, देखिए जो मैं मैं समझ पॉइंट्स सकता यहां हूँ। पे देता हूं उन पॉइंट्स को बिल्कुल बहुत बिल्कुल। सारे एक्स मुस्लिम अपनी डिबेट में यूज करते हैं। तो जी आई वांट टू, आई एम द वन, आई एम द एक्सप्लोरर। मैं एक्सप्लोर करके लाता हूं, वो डेटा देता हूं, वो फिर लोग यूज करते हैं, विच इज गुड। और क्या। एक महीने से तो मैं जितने भी आलिम हैं, उलमा हैं, उन सबको दिल से लानत भेज रहा कि उनको पता है कि आप स्ट्रीम कर रहे हो, आप इतना कुछ बोल रहे हो, लानत हो उन पे। अगर अल्लाह है तो उनकी लानत हो उन पे, जो इतना कुछ सुन भी रहे हैं, सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन आके आपको फेस नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो बस मुझे लानते भेज रहे हैं अपने चैनल पे, जिनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्लाह तो है नहीं तो उनकी लानत भी कुछ नहीं कर सकेगी। तो अब आप बताएं, आप फाइनली कल के बाद आज आप
स्टुपिडिटी से बाहर आते कंफर्म? जी बिल्कुल, यस। तो बोले फिर लेकिन अल्लाह एक फिर भी झूठा मुझे खुदा है, ना, मोहम्मद एक झूठा नबी है। मैं तो बोलता हूँ चले मोहम्मद बेहतरीन वास, हो गया। लेकिन फिर भी मेरे को एक इमोशनली थोड़ा सा ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए कि जो कॉमन लेवल पे जहाँ नहीं पे मैं सर, बात कर सकूं, एटमॉस्फेयर नहीं चाहिए आपको, दिल की भड़ास। दिल की भड़ास एटमॉस्फेयर नहीं अब आपको चाहिए। अब आपको अपने दिल को सेट करना है। दिल की भड़ास निकालने के लिए बहुत सारे एक्सक्लूसिव चैनल्स मौजूद हैं और आपको भी पता है, जी जाए उनमें। वो अब अब अपने जो देखो, अपने सलीम वास्तिक साहब हैं, वो बड़े कॉमन लेवल पे बात करते हैं, एक बड़े लोअर लेवल जी पे बात करते हैं ताकि हाँ, नॉर्मल बंदों को पता मैं लगे। उनको भी सुनता हूँ। सलीम वास्तिक के साथ वो एक और भाई हैं जो आए हुए थे, क्या नाम था एहसान, यार? हाँ, एहसान, एहसान। एहसान, एहसान भाई बड़े कॉमन लेवल पे बात करते हैं, बहुत कॉमन बातें करते हैं। उनके जैसे चैनल मुझे पे कुछ जाएं चीजें आप। अब कंफर्म करनी थी, जैसे कि अब ना आवाज गई आपकी। अच्छा ट्रुथ भाई, मैंने आपको प्राइवेट चैट में ये टेलीग्राम ग्रुप और चैनल का हेलो, लिंक दिया है, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाएं आप। इनको आवाज ही नहीं आ रही। चलो तुरंत साहब तो गए लगता है। तो अच्छा एडम साहब, थोड़ा कॉमेडी भी जरूरी होती है। एक वीडियो मैंने अमित को भेजा है, मुझे बताना कि इसमें कौन बात कर रहा है। यार म्यूजिक ना हो बस उसमें, आवाज बाकी किस, सब ठीक है। नहीं म्यूजिक नहीं है, म्यूजिक नहीं है। क्योंकि आज की तो स्ट्रीम ऑलरेडी जो है ना वो रिकमेंडेड में कहीं भी नहीं जा रही, पहले हाथ में ही उन्होंने जो है ना यूट्यूब हाँ, ने उसके ऊपर खंचा मार दिया। म्यूजिक नहीं है वो। बेहतरीन, तुरंत साहब आया वापस। अमित, हाँ ट्रूथ साहब से बात करके। सॉरी हाँ पता जी तुरंत नहीं साहब। नेटवर्क से। मुझे ना एक मेन कंसर्न आ रहा है कि मुझे ना लात मनात और उज़्ज़ा पे ना बहुत ज्यादा फैसिनेट हो सर रहा हूँ मैंने उसके आपको लिए मैं। येस्टरडे भी कहा था कि लात मनात उज़्ज़ा के लिए मेरे हिंदी चैनल पे जाएं, मैंने उसके नहीं, मैंने ऊपर वो देख 3 लिया आज, स्ट्रीमें की हुई हैं, तो बबा खत्म हो गई, अब क्या टेंशन है? लेकिन अब मेरे को लग रहा है कि अब मैं क्लियरली बोलता हूँ, मेरे को लगता है कि सनातन जो है एक बहुत पुराना था और वो ही रियल है, और मैं लात मनात और उज़्ज़ा को त्रिदेवी जो सनातन में होती है उसके साथ कंपेयर करने लगाऊंगा। सर आप कंपेयर कर लें, अगर कंपेयर करने आता है बहुत सारे लोग गुस्से में भी आ जाएंगे, लेकिन डजंट मैटर। वो तो उस इसी बारे वहां में पे मैं किसी से बात करना चाहता था। वो सर फिर आप सनातनी चैनल्स पे चले जाएं, हिटी डिबेट पे चले जाएं, उनसे पूछ लें। वैसे सनातन वाले भी इसका क्लेम करते हैं एडम साहब, लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती तीनों देवियां लात मनात उज्जा जी की जी पूजा। जी, ये आपने सही, यही त्रिदेवियों को। वो आप वहां पे जाके तो पूछें, किसको ये याद, चैनल मुनासिब नहीं है इस चीज का बात करने का, क्योंकि हमें नहीं पता। आप हिटी डिबेट पे चले जाएं। जो अमित सर ने बोला, अमित सर आपको इस बारे में पता है कुछ? नहीं, वो जो ये शेर का उनका जो सवारी है वही इनकी दुर्गा माता की है, तो उस तरह से कुछ सर करते हैं वही क्लेम। बात कर रहा हूँ ना, कोई क्लेम हाँ, शलेम है, कुछ हम बोलना नहीं चाहते, हाँ उसके हाँ, लिए आप उसके उसके रेलेवेंट चैनल पे चले जाएं। ठीक है सर। और ट्रुथ भाई, मैंने आपको ये प्राइवेट चैट में देखो लिंक दिया है इसका, टेलीग्राम ग्रुप और चैनल का, तो ग्रुप में जुड़ जाएं आप, वहाँ आपको बात करने के लिए और भी बंदे मिल जाएंगे। ठीक हो गया भाई साहब? चलें चला चले गए गया, हम। चला गया। हाँ अच्छा एडम साहब, मैं आपकी स्क्रीन हटा रहा हूँ, वो साहिल साहब ने जो वीडियो दिया वो जी जी, लाइन 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 प्ले करें जी। सबने बताना है आवाज किसकी है ये। ओके। हाँ तो का हम लोग गए थे, घाट पे गए थे, चाय भी पिए थे। तुमको आज तक घुमाया है का? वो हमको घुमाया है। हम लोग मॉल भी गए थे, वो भी परसों। ये तो रोशनी जी की नहीं बात है। किया तुमको फकीर भी सारी? तू उसके लिए क्या किया ये बताना। तू ये तो डोमेस्टिक रोशनी करती जी है की क्या? बात है जी। रोशनी जी ये आप ही हैं? कोर्स किए हुए हैं। बिल्कुल भी नहीं। जैसे बच्ची लोग से हम पंगा नहीं लेते एक मर्द के ऊपर। मैं इंडिया की फर्स्ट अमित जी पॉज करें जरा, रोशनी जी को बोलने दें। रोशनी जी ये आप ही की बात है? नहीं नहीं नहीं। अच्छा रोशनी,
کل میں یہی بول رہا تھا کہ وہ ایک وائرل ویڈیو ہے انسٹا پہ، میں نے سنا ہوا ہے، تو روشنی کی آواز بالکل ویسی ہی لگتی ہے. ہاں ایڈم سیم لگ رہی ہے نا ایک دم. بے شک جی بے شک، میں تو کہہ رہا ہوں روشنی جی کی آواز ہی ہے یہ. تو مطلب سب جگہ پہ دھمال مچا رہی ہے روشنی. چلا نا اس جی کا آپ آگے. بھی دمال میں جا رہی ہیں. ہاں نہیں تھوڑا سر، چلاؤ، تھوڑا چلاؤ. کیا ہوتا ہے رے؟ کورین گرل. سن تو ہوگی اپنے کوریا کی ہوگی، ہم کو نہ بتا. انڈیا میں ہمارا راج چلتا ہے اور گوپال ہمارا دوست ہے. پلیز لڑائی مت کرو، وی ول سورٹ اٹ آؤٹ، اوکے. ہم کو کچھ سوٹ بھوٹ نہیں کرنا ہے. گوپال کو تم بلاک کرو. بلوک. ہی از بلاک ناٹ کرو. ریپلائی می سنس 4 hours. بہت اچھی بات ہے، رپلائی نہیں دے گا وہ. میرے ڈی ایم میں آیا تھا اور بولا تھا کہ سو جو ہے وہ پگل آ گئی ہے، اسٹوری پہ ہمارا بےعزتی کرتی رہتی ہے. کتنا فالوور ہے تمہارا؟ 20,000. کاہے تم 20,000. بےعزتی کرتی رہتی ہو رے؟ تم ہوتی کون ہو؟ اپنے اوقات میں رہو نا. سن ادھر میری یہ بات، کون ہے ٹھیک ہے؟ اوقات میں دھیان سے روڑا؟ سن تو. نہیں یہ میری جو فین لوگ ہیں نا، فین لوگ، وہ گوپال کو کمنٹ میں گالی دے رہی ہے ہمارے لے گا. بٹ گوپال از مائن. وہ تیری خیر ہو جائے، سن، یہ یہ خیر ہو انگریزی میں جائے. ہمارے سامنے ایٹیٹیوڈ مت جھاڑیو، ہم پہلے بتا رہے ہیں. یو آر سو گوار. یو آر ویری گوار اینڈ گوپال میرا ہے. سن لے میری بات، گوپال ہمارا دوست ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ ہمارا بائی فرینڈ ہے. بائی وہ فرینڈ. تیری بائی خیر ہے، فرینڈ. بائے فرینڈ ہے، بائے نہ فرینڈ. شکل نہ صورت. تم خود کا شکل دیکھی ہو. سننا، ہم سے رگڑا مت کھیل، ہم بتا رہے ہیں، جٹا پکڑ کے نوچیں گے ہم. گوپال ہمارا دوست ہے اور صرف ہمارا رہے گا. یار کیا نصیب والا ہے اوقات گوپال میں یار. رہنا سیکھ لو. سو بٹ وہ تو صرف تمہارا دوست ہے نا، وہ ہمارا بائی فرینڈ ہے. مگر بائے فرینڈ. بائی فرینڈ. نا، سن لے میری بات، تیرا بوائے فرینڈ تھا وہ، اب نہیں ہے. اب دور نہیں. رہے اس سے تو بیٹر ہے. یار یہ کیا سائل سنا دیا یار، یہ کیا ہے یار، یہ کیا سنا دیا یار. یار میں کل سے نا سوچ رہا تھا کہ یہ ویڈیو میرے کو کہاں ملے گی، کہاں ملے گی. سیم ایک دم روشنی جیسی روشنی کی آواز بالکل اس سے ملتی ہے جو اس میں بات کر رہی ہے. تو میں نے ابھی ڈھونڈ کے نکالا، میں بولا تھوڑا نہیں مزہ کرتے ہیں. شروع میں مل رہی تھی، اس کے بعد چینج ہو گئی تھی تھوڑی سی. اچھا. اب وہ شروع میں مل رہی تھی. بہاری ٹون ہے نا سر، اس کے لیے میچ لگتی ہے. میچ ہوتی ہے، صحیح بات ہے. اس وجہ سے آ رہا تھا ایسا لینگویج. بولو بولو چلو جی، روشنی، بولو کیا بول رہے تھے. ہم پوچھ رہے تھے یہ سب ہو کہ گئی تھی جیسے بات ختم ایڈم کی؟ ایڈم سے ہوگی بات ختم. ہم کو بول رہے ہاں نہیں، دو تو کوشچن پوچھنا تھا. پوچھو نا. بولتے ہیں کہ رمضان میں نا وہ قرآن شریف آیا تھا، آیت نازل ہوئے تھے، تو امی لوگ بتاتی ہے تو کیسے آیا تھا. اچھا نبی پاک جو آپ لوگ کا سنتے ہیں کہ وہ خود بولتے تھے اور پھر آیت بنتے تھے، تو خود بولتے تھے وہ تو اتنا تو سمجھ میں آ گیا. ان لوگ ڈنگر لوگ جو آتی ہے ان لوگ کو جو سمجھاتے ہیں اس کے جیسا تو نہیں ہے، اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ جیسے ایڈم بھائی کتنا بار بولے ہیں کہ کہاں نازل ہوا، کہیں پتہ میں ہوا، کہاں ہوا، کہیں لکھا ہوا تھا جو دیکھی ہے. تو محمد صاحب جو بولتے تھے وہ آیت بنتا تھا. تو ان کے پاس اتنا دماغ پھر کیسے آیا کہ پورا قرآن شریف چھپ گیا؟ اتنا بڑا قرآن، اتنا سارا آیت، اتنا سارا کچھ، اس کے بعد پھر اس میں سے پھر حدیث. ہلو یار یہ جو قرآن بنا نا، یہ آلریڈی وہ چھوٹا ہے. 23 سالوں میں قرآن آیا، تو 23 سالوں میں اگر 0.7 آیتیں آئے نا ایک دن میں، تو یہ قرآن بنتا ہے. تو قرآن تو آلریڈی وہ چھوٹا ہے. آپ کیا چاہتی ہیں؟ اس سے بھی چھوٹا قرآن چاہتی ہیں؟
नहीं, हम कुछ चाहते नहीं है। हम लोग तो इतना डरे हुए थे, हम अपना सिर्फ बात नहीं करे, इतना बड़ा मेरा खानदान है, हम लोग खुद 6-7 भाई बहन है, खाला की, मामी की, इतना बड़ा खानदान है हम लोग को। तो इतना बड़ा खानदान में उठना बैठना, शादी ब्याह हर चीज में, पर आज तक हम लोग को तो यही मतलब दिमाग में चल रहा था कि अल्लाह पाक है, फिर हम लोग के प्यारे नबी है, उन पे कुरान नाजिल हुआ है, उनके हदीस है, अम्मी आयशा से शादी किया गया है, हम लोग इतना एहतराम से चलना है, ये सारा चीज में हम लोग चले आ रहे हैं। नमाज पढ़ना है, अच्छा से रहना है, मंदिर नहीं जाना है, पूजा पाठ नहीं करना है, हिंदू लोग से दूर रहना है, सब शिर्क है, सब गुनाह है, इसमें गुनाह उसमें गुनाह, हर चीज में गुनाह। हम तो खैर ऑब्जेक्शन डालते थे, जैसे कुछ हम करते थे तो इसमें गुनाह है, तो फिर सामने से बात आता था कि गुनाह तो सब चीज में है, कदम कदम में गुनाह है, जो मौलाना मुल्ला लोग हम लोग का यहाँ पर ऐलान करता है माइक ले लेके कि हर चीज में गुनाह है, हम लोग गुनहगार है, खतेबाज है, ये है वो है। तो हमको कुछ मन करता था करने के लिए, तो हमको जब सामने से बोला जाता था, डराया जाता कि गुनाह होगा इसमें, तो हम तो फट से जवाब दे देते थे कि जब सब चीज में गुनाह है तो एक गुनाह और सही। हम जब हमको शौक है ऐसा कपड़ा पहनने का, हमको शौक है ऐसे घूमने का, तो एक गुनाह और सही। जब अपना शौक पूरा करने के लिए गुनाह होता है तो गुनाह ही सही। उन लोग को 4 कोड़े मारेंगे अल्लाह पाक, हम 6 कोड़े मार खा लेंगे, पर अभी हम काहे के लिए डर के और अपना शौक मार के रहे। तो आप लोग का वीडियो को वजह से तो बहुत दिमाग खुला, बहुत दिमाग में सब कुछ आया। हम लोग तो इतना ये से चले आ रहे थे, मतलब इतना गुमराही में, मतलब जब हम लोग सब सोच रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तब समझ में आ रहा है कि क्या है ये सारा चीज। एक एक चीज को जब एडम भाई, साहिल भाई लोग जब साबित करते हैं, हर एक चीज को देखा देखा के कि ये देखो ये देखो, बहुत ऐसा उधर की जो लड़की लोग आती है, जो मदरसा का लड़का लोग आता है, उन लोग तो खैर बिल्कुल बहस करता है आपसे, इतना ही ज्यादा उल्टा पलटा घुमाता है, लास्ट में गाली गलौज में आ जाता है। पर उन लोग समझता नहीं है और देखता भी नहीं है और कॉमन सेंस भी नहीं लगाता है। सिर्फ उन लोग कुरान थोड़ा सा पढ़ लेता है, अरबी थोड़ा पढ़ने जानता है, पर हम लोग नहीं पढ़े उतना, पर समझ में तो आता है, कुछ तो दिखता है, कुछ तो समझ सकते हैं, इतना तो दिमाग है, पर उन लोग बिल्कुल नहीं समझती है। एक एक चीज आप साबित किए हैं जो हम लोग बिल्कुल नहीं पता था अम्मी आयशा के बारे में, वो अली से जो जंग हुआ, ये चीज हम लोग को नहीं पता था। हम लोग तो एक तो क्या बना के रखे हुए थे कि जब हम लोग ऐसा सोचते थे कि हम लोग को मोहम्मद साहब जब शादी भी किए हैं ना, अपने बीवी से भी मिलते होंगे ना, तो मतलब इतना इस इज्जत से मिलते होंगे, क्या पता उनको प्यार भी नहीं करते होंगे, क्योंकि वो तो आए थे दुनिया में सिर्फ अपना इस्लाम फैलाने के लिए, और दिन रात उनका तो नमाज में ही पार होता था, दिन रात दुआ में, रात रात भर तो पहाड़ में बैठ के दुआ करते थे, उम्मत के लिए रोते थे। हम लोग तो दिमाग में ये सारा कुछ भरा हुआ था। ये सब कुछ तो सुनने के बाद तो हम लोग मतलब डिप्रेशन में चले गए थे। हम तो खैर ज्यादा चल गए थे, 2-3 दिन। फिर हम सबको जब दिखाए थोड़ा 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 थोड़ा, तब उन लोग को भी समझ में आ रहा। फिर आप लोग को देख के तो बहुत कुछ समझ में आया, और सबसे ज्यादा ये चीज का खुशी है कि हम लोग जो डर के जीते थे, अरे बाप रे इसमें गुनाह है, ये चीज करेंगे तो गुनाह है, इसमें फिर गुनाह होगा, ये होगा, कब्र में बस ऐसे कर दे रोशनी, बस कर दे, बस कर दे भाई। अच्छा मैं एक तू चीज तो नॉन स्टॉप चलती है, दीदी क्या क्या रेड बुल पी के आई है? बस कर दे, कौन सी रिलैक्स हो जा। सुनिए, तो आप सुनिए, आप एक सेकंड मेरा बात सुनिए। आप किसी को मतलब इतना दिलो जान से मान रहे हैं, और अचानक से आपको पता चले कि मतलब ये चीज सही नहीं है, गलत है, तो कैसा लगेगा आप सोच के देखिए। वैसे हम लोग पे बीत रहा है वो चीज, हम लोग ना खलबला गए हैं। हम लोग ऐसे थोड़ी कि 6 महीना पहले से आप लोग को देख रहे हैं, 4 महीना 3 महीना, हम लोग अभी 1 महीना से देखे। हम लोग दिन रात हम लोग सिर्फ आप ही का चैनल, आप ही लोग का वीडियो हम लोग का घर में चल रहा है, टीवी में लगा देते हैं, अम्मी बैठी हुई रहती है, बोले अम्मी सुनना सुनना, कितना मुश्किल से तो सुनाए, लोग सब सुन रही है, घर में सारा काम उम करके इन लोग को सुनाते हैं, समझाते हैं, दिखाते हैं कि देखिए जब आप इतना जो बहस करते हैं, अम्मी लोग बोलती हाँ सही बात है, खाला लोग, बाजी लोग सबको दिखा रहे, समझा रहे, आप समझ रहे। हम लोग घर का माहौल उथल पुथल है कि ये का है, कौन सही है कौन गलत है। अभी तक ना मतलब फाइनल अभी रिजल्ट में कोई आया नहीं है कि मतलब पूरा 100% कि एडम भाई साहिल भाई एकदम सच बता रहे हैं, पर समझ में आ रहा। तो आपको मालूम नहीं कि हम लोग घर का माहौल कैसे चल रहा है अभी, तो इसलिए मेरा ना वो जो अब बोल रहे ना हम, उसका रीजन यही है कि ऐसा है।
हम लोग के लिए बहुत नया है और बहुत ज़्यादा हम लोग को ये हो रहा है, हजम नहीं हो रहा है कि भाई ये का सुन क्या रहे हैं, देख क्या रहे हैं, समझ रहे क्या है कि इस्लाम में ऐसा 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 चीज है। इतना पाक हम लोग को, इतना पाक बनना कि कैसे कौन नापाक है कौन पाक है, नमाज पढ़ना है। जब हम लोग का जो लेडीज को आता है तो फिर उसके बाद फिर नहाना है, इससे पूरा अच्छा से, उसके बाद फिर नमाज पढ़ना है, फिर कुरान को छूना है, वजू बना के कुरान को उठाना है, कुरान को बेअदबी नहीं करना है, उधर पैर नहीं रखना है, पश्चिम की तरफ पैर करके जरा से पश्चिम तरफ अगर पैर चल गया तो उठना है, सलाम करना है, फिर मतलब टीवी लिमिटेड देखना है। कितना हम लोग पाबंदी में थे, आपको समझ में आ रहा? आप बोल रहे नॉन स्टॉप तुम बोले जा रही है, हम लोग का जिंदगी कैसे चल रहा था। हाँ, हम लोग का जिंदगी भी ऐसे ही चल रहा था, अब ठीक हो गया। यार मेरे को तो ऐसा लगता है कि रोशनी एक दिन अपने पूरे गांव को जो है ना एक्स मुस्लिम बना देगी। शी's got that courage, she is excited और काफी दमदार है जब एकदम। पता चली गया कि मतलब है क्या, समझ में आ ही गया तो बताएंगे काहे नहीं। तो उसको फिर चुपचाप रह के कोई फायदा तो है नहीं ना, फिर उसको भी तो दिखाना है, उसको फिर दूसरा को तीसरा को सबको दिखाना है। दुनिया में नहीं जा सकते, कम से कम अपने फैमिली में, अपने खानदान में, अपने रिश्तेदार में, अपने दोस्त लोग के साथ, फिर उन लोग अपना आगे बढ़ेगी। दिखना चाहिए। हम लोग पता है हम लोग कितना गुमराही में जी रहे थे, कितना डर डर के जी रहे थे। आप लोग की वजह से ना ये डर खत्म हुआ। एक एक कदम में हम लोग डरते थे कि इसमें गुनाह है, इसमें गुनाह है, सर ढक के खाना बनाना है, दुआ पढ़ना है, कलमा पढ़ना है, हर चीज में दुआ, हर चीज में बाप रे बाप, कुरान खोलना है। अम्मी लोग ठंडा का दिन है फिर भी उठ रही है, नमाज पढ़ रही है, वो उसी ठंडा में कांप कांप के बीमार पड़ जा रही है, फिर भी मेरी बाजी लोग बीमार है, हर कुछ है, फिर भी नमाज के लिए दौड़ रही है। फिर हालांकि कोई एकदम अच्छा से कोई इसके साथ है ना महलीज है ना, रोशनी सुनो, महलीज जो है ना, महलीज कह रही थी कि वो तुमको अपने चैनल पे इनवाइट करेगी और तुम्हारी पूरी स्टोरी सुनेगी। तो अपनी पूरी भड़ास जो है ना वो पॉइंट भी लिख के रखो। हालांकि मेरे को नहीं लगता तुमको लिखने की ऐसा जरूरत है, फ्लो में तुम आराम से 2-3 घंटा, हाँ 2-3 घंटा आराम से निकाल सकती है रोशनी फ्लो में। तो महलीज तुमको बुला रही है। महलीज कब करोगे लाइव, जरा बताओ जरा। आएगी उधर, रोशनी आएगी। रोशनी जी मैं आपको एक बात बताऊं, खाना अभी भी सर ढक के ही बनाया करो। क्यों? क्योंकि वरना बाल गिर जाएगा तो मसला होगा। यहाँ पे मुझे इतराज नहीं है खाना बनाने में सर ढक कर। वो तो सही है कि सर ढक के खाना बनाना चाहिए, पर हम लोग को सिखाया गया है कि हर टाइम सर ढकना है, पीठ ढकना। हम लोग को भैया ना आके पीठ में मारते थे। शुरू हो गई यार, मैंने मजाक किया था। मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे को पूरी उम्मीद है कि रोशनी पूरे अपने गांव वालों को एक्स मुस्लिम बना देगी। देख लेना, ये वक्त भी आएगा। किस किस को मेरी बात सही लगती है कि रोशनी में इतना दम है कि पूरे गांव वाले को एक्स मुस्लिम बना देगी। एक्स मुस्लिम बनाना वो चलो बनेगा नहीं बनेगा, देखिए किसी को हम लोग जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। जैसे आप सच्चाई बताते हैं ना, वहां तक हमको अच्छा लगता है। तुम लोग को बनना है बनो, लेकिन एटलीस्ट मतलब सच्चाई तो पता चले। हम लोग कुछ भी नहीं जानते थे। अरे ऐसा नहीं कि हम लोग मिलाद नहीं सुनते थे, जलसा में आते थे यहाँ मौलाना लोग, हम लोग रात रात भर उनका तकरीर सुने हैं। आज से तो बच्चे से सुनते हुए आ रहे हैं और अभी भी सुन रहे हैं। हम लोग के अम्मी लोग, बाजी लोग तो हम लोग से कितनी बड़ी है, उन लोग भी सुनते आ रही है। अगर उन लोग को ये सारा कुछ पता रहता तो हम लोग साथ डिस्कस करती ना। पर हम लोग के नजर में तो अल्लाह पाक और नबी पाक का ऐसा छवि बना हुआ है, ये 72 हूर तो कुछ हम लोग को पता नहीं था। जैसे एडम भाई जो उस दिन बताए कि गंदगी नापाक पाक के बारे में जो बात कर रहे थे, कि मोहम्मद साहब जो अपनी बीवी लोग को बोलते थे कि मतलब ऐसे ही धोना धाना नहीं है, तो वो सब सारा कुछ नहीं, बस एक बीवी है खतीजा और एक आयशा, बस इतने ही जानते थे। एक दो और है जो डिवोर्स हो गया था तो उन लोग को शादी कर लिए, इसलिए कि उन लोग को सहारा देने के लिए उम्मत में, मतलब उनके नबी पाक का उठना बैठना सोना खाना पीना सारा उम्मती के लिए है, उनको ही फॉलो करना है। और हम लोग ये सोचते थे जैसे वो इतना अच्छा से चल रहे, हम लोग को चलना है। और उसके बाद मरने के बाद जब कयामत आएगा, हर्ष के मैदान का दिन सबको खड़ा किया जाएगा, तो उस दिन नबी पाक आएंगे और हम लोग को बख्शाइश करवाएंगे। ये सारा चीज हम लोग को दिमाग में सिर्फ मौलाना लोग भरती गया। और हम लोग कितना डर के साथ जीते थे, किसी से बात नहीं अच्छे से करना, इंसानियत तो खत्म ही हो गया था।
अब जिंदगी का एंजॉय क्या है, जिंदगी में जीना है, वो सब भी खत्म। बस सुबह उठो, फजर का नमाज पढ़ो, काम करो, फिर जोहर पहुंच गए, नमाज पढ़ो, असर पढ़ो, मगरिब पढ़ो, बस खत्म। इतनी में है दुनिया। ना कहीं घूमना है, ना फिरना है, ना हंसना है, ना एंजॉय करना, ना टीवी देखना, सब में मनाहट। इतना मतलब कठोर है हम लोग का इस्लाम। पहले तो लगता था कि चलो हम लोग दुनिया में, और मौलाना लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग को अल्लाह पाक पता है दुनिया में क्यों भेजे हैं, मार्केट करने के लिए। तो आप जब मार्केट करिएगा तो अच्छे सामान ना खरीदिएगा, खराब तो नहीं खरीदिएगा। तो आप देखिएगा कि ये अच्छा चीज है, कोई सड़क फल तो नहीं खरीदेगा, अच्छा फल खरीदेगा। तो हम लोग को अल्लाह पाक ना दिमाग काहे दिए है देखने के लिए कि कौन चीज अच्छा है, कौन चीज खराब है, तुम लोग खुद डिसाइड करो। और जो डिसाइड नहीं कर पाता है फिर उसको जहन्नुम में सजा मिलेगा। यार ये जितने भी मौलानाओं से इसने लेक्चर सुने हैं ना साहिल, इसने सारे के सारे जो है ना हमारी स्ट्रीमों में बता रहे ये मौलानाओं की डसी हुई है असल में। अमीनुल कादरी को बहुत, ये मोटा अमीनुल कादरी, वो कुमुल लीलाई कालदीन वाला। इनामुल कादरी, मुफ्ती सलमान अजहरी जो है, हाँ, अरे इन लोग को हम लोग कितना सुनते हैं, कितना हम लोग को आते हैं, इतना मीठा मीठा हम लोग को बताते हैं, ऐसा इस्लाम है, ऐसा कुरान है, ऐसा हाथ है, आंसू बहाते हैं सहाबा के लिए, कितना उन लोग तकलीफ किए हैं, कितना उन लोग, कितना गरीबी। हम लोग का नबी पाक के पेट में पत्थर बांध के कितना दिन दिन तक रहते थे भूखे प्यासे। हाय 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 हाय, या हुसैन, या हुसैन। मगर बात यह है कि ऐसा करते हैं, आपको मैं रखता हूँ अपनी स्ट्रीम में, जब भी ब्रेक लेनी होगी ना तो आपको मैं कहूंगा ब्रेक के लिए रोशनी जी को जब भी ब्रेक लेना होगी ना तो हम रोशनी जी को ले आया करेंगे। एक कोई हसलर साहब आए हैं, इनको पहले देख ले। मिस्टर हसलर, मुसलमान हैं आप? मिस्टर हसलर, हसलर साहब अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या हाल है? कैसे जरा ऊंची बोलिएगा। सब लोग आप कैसे हैं? सर हम सब लोग ठीक है भाई। मुसलमान है सर आप? मुसलमान हूँ बट थोड़ी कंफ्यूजन मैं सब हूँ। मुसलमान है लेकिन थोड़ी कंफ्यूजन। ऐसा करें जरा अत्तहियात पढ़िएगा। अत्तहियातुल्लाहि व सलावतु व तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। जी भाई साहब, क्या कंफ्यूजन है भाई को? सर मैं अभी ना आपको काफी टाइम से देख रहा हूँ, आपको, साहिल भाई को और थोड़े से यूट्यूबर से जैसे कि हारिस भाई हो गए और गालिब कमाल, तो बहुत क्वेश्चन है। मुसलमान हूँ मैं भी, लेकिन मैं जब पढ़ता हूँ ना स्लेवरी होगी, ये लॉन्ड्री वगैरह होगी, तो इस चीज़ों को जब मैं देखता हूँ तो मैं बहुत डिस्टर्ब होता हूँ कि ये हमें मतलब कि बताया नहीं गया था मशरों में, कारियों ने, तो बहुत दुख होता है कि ऐसा क्यों था। तो भी मैं इसको छोड़ने की कोशिश करता हूँ, तो बहुत मतलब कि ना डिस्टर्ब होता हूँ, कभी कभी रोता भी हूँ अपने आप पे, ऐसा क्यों हुआ था। अभी भी बहुत डिस्टर्ब हूँ, अभी तकरीबन हफ्ता हुआ है ये सवालात मेरे माइंड में ऐसे घूम रहे जैसे कि मैं लफ्जों में बयान नहीं कर पा रहा। तो बहुत डिस्टर्ब हो रही है, आगे का समझ नहीं आ रही, किसी से बात नहीं कर सकता ओपनली, पाकिस्तान में रहता हूँ तो समझ नहीं आ रही। तो कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन ये है कि मैं इससे निकलना चाहता हूँ लेकिन कुछ फीलिंग्स तो आप ऐसी निकल गए हैं हैं ऑलरेडी। जब आपको बुरा लग रहा है तो आप निकल चुके हैं। बस अब आगे कुछ नजर नहीं आ रहा। पहले ये था ना कि कुछ दोस्त थे उनसे बात करना, मजहबी बात कर लेना, कोई आगे पीछे निकल जाना, नमाज पढ़ लेना, रोजा रख लेना, स्कूल मिलता था। मैंने इसकी बैकअप सिक्के के दो से होते हैं ना, पहला सिक्का मैंने जो उसका ऐसा देख लिया, अब जब मैंने उसका दूसरा देखा तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि ऐसा हुआ था। तो वो चीजें मुझे ऐसा हुआ था, आपने तो डेटा देख लिया ना, कुरान की आयतें देख ली, हदीसें देख ली, तो ऐसा हुआ था। जी बिल्कुल, मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है बट अब समझ नहीं आ रही। मेरा भी जिसम थोड़ा सा काम पर है, डर से एक खौफ होता है ना खुदा का, वो बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। खुदा का खौफ करे, अल्लाह का ना करे ना। अल्लाह तो शैतान है, जो ऐसी चीजें देगा वो शैतान है। तो खुदा का खौफ कर ले,
اللہ کا نہ کرے. میں آپ کی اللہ ساری تو باتوں شیطان ہے. تھوڑا سا کوئی ایسا طریقہ بتائیں جس آپ پہلے بھی شاید مجھے آپ کا بایو ڈیٹا نہیں پتا کہ آپ پہلے مسلم تھے کیا تھے یہ بات مسلمان ابھی تھا نا. بنے. ہم نے بھی آپ کی سٹیج پہ تھے اور پھر ہم نے بھی کہہ دیا اللہ ایک شیطان ہے, پھر ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا. زبردست. اب اسٹارٹنگ میں آپ نے کیا وہ طریقے اپنائے جس سے آپ کو تھوڑی سی سکون یا تھوڑی سی تسلی ملی کہ یار یہ مجھے یہ تسلی ملی مشکل تھی کہ ایسا بغیرت خدا ہو ہی نہیں سکتا یار آپ جو کو اس طریقے سے حرکتیں کرے. اوکے. اور مجھے صحیح خدا کو ڈھونڈنا ہے کیونکہ یہ خدا جو ہے نا یہ خدا ہو ہی نہیں سکتا. ہاں مجھے ایسا لگتا ہے کہ خدا ہو سکتا ہے لیکن یہ پیغمبر کا کنسیپٹ ہے وہ ایسے کام نہیں کر سکتا نہیں سر, جو ہم یہ نے. بات نہیں ہے نا. بات یہ ہے کہ خدا ہی غلط ہے نا. ہاں اگر مجھے یہ نہیں کو بتایا. قرآن کی آیتیں بول رہی ہیں نا یہ باتیں, تو پھر خدا ہی یہ والا غلط ہے. دیکھو دنیا میں تو بہت ڈھیر سارے خدا ہیں, 4000 تقریباً 4000 دین ہیں. تو بھائی بالکل پھر بالکل فیک خدا تو بڑے ڈھیر سارے ہیں نا. تو یہ خدا تو شیطان ہے. صحیح. پتہ کیا ہمیں نا پرمیشن نہیں تھی, سوچنے تک پرمیشن نہیں تھی ہمیں, بس اسلام میں سکھایا گیا تو سوچنا بھی نہیں ہے. میں نے بڑی مشکل سے دماغ سے چیز نکالی ہے, سوچ لیتا ہوں کیا ہوتا ہے. پھر میں نے سوچا, میں نے کچھ اسٹریم دیکھی آگے پیچھے کروم سے ہسٹری لی, میرے زمین سے نا میرے پیر سے زمین نکل گئی. آج یہ کہ میں سن رہا ہوں مجھے ابھی تک یقین نہیں ہو رہا کہ یہ میں خواب تو نہیں دیکھ رہا. بہت مجھے ڈسٹربنس ہوئی ہے. ابھی آپ کی باتوں سے کچھ لگ رہا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا, لیکن جب کچھ بیک گراؤنڈ دیکھتا ہوں کہ میں نے یاد کیا ہوا تھا تو مجھے باتیں میرے دماغ میں ڈالی گئی تھی, اگر نہ کیا تو پھر عذاب آئے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا, پھر وہ کچھ ڈسٹرب کرتا ہے. ابھی مجھے حال ہی میں 2-3 دن ہوا میں نے یہ باتیں کرنا اسٹارٹ کی, تو میں ابھی بھی بہت مجھے اچھی ڈر بات ہے. لگے. آپ کو جب بھی ڈر لگے ہماری کوئی سی بھی اسٹریم کھول کے سننا شروع کر دیا کریں, آپ کا ڈر جاتا رہے گا. صحیح ہوگا سر. جب بھی آپ کو ڈر لگے ابھی ہماری اسٹریم کھول کے سننا شروع کر دیں, آپ کا ڈر جاتا رہے گا. صحیح. ہم ڈر کے خلاف کھڑے ہیں, اللہ کے ڈر کے خلاف. ہم اللہ کا ڈر نکال کے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اوکے سر اوکے. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں آپ سے بات کروں. میرا ایک ڈریم تھا کبھی موقع ملے گا. میں ابھی یوٹیوب میں نے اوپن کیا تو آپ کی نا جو اب بتا رہا ہوں وہاں پر لکھا ہوا لائیو, میں نے کہا یا ہوں لائیو, مجھے موقع ملے گا دیکھتا ہوں. تو میں نے لائیو جوائن کیا, آپ نے مجھے اسی ٹائم ہی پک کر لیا, تو مجھے تھوڑی سی ابھی تسلی ہو رہی ہے کہ بات کرنے سے جواب ملتے ہیں. پہلے تو یہی تھا کہ بس سوال بھی نہیں کرنا آپ نے, بس جو ہے اسے بھی آپ نے یقین کرنا ہے. تو میں نے پھر قرآن پاک کو اردو میں پڑھنا شروع کیا تو مجھے ایسی سی چیزیں ملی, میں کہتا ہوں یہ تو اللہ کر سکتا ہی نہیں ہے. وہ ایسے سے وہ عورتوں کے بارے میں لکھی چیزیں, سلیوری کے بارے میں بہت کچھ مجھے ملا ہے. ابھی میں اس کو کنٹینیو کر رہا ہوں تو مجھے بہت کچھ پوائنٹ مل رہے ہیں جو مجھے اس چیز سے نکال رہے ہیں. تو بہترین. میں تو بس یہ کچھ کنفیوژن تھی, میں نے کہ آپ سے پوچھوں گا. جب آپ نے نیا جب آپ کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ غلط ہے تو اس جو آپ کی اس دوران جو صورتحال تھی وہ بہت نازک ہوتی ہے نا, کیونکہ میری ہے. تو اس وقت آپ نے جو بتا دیا کہ آپ پڑھتے رہیں, یار ہو تو ہم سے بات کر لی کریں, یوٹیوب دیکھ لی کریں, تو مزید نکل جائے گا. بہترین. دوستوں بھائی کے لیے فلاورز بھیجیں. ایک اور وکٹ گر چکی ہے. پاکستان سے ڈھیر ساری وکٹیں گر رہی ہیں. آج 2 پاکستانیوں کی وکٹیں گری ہیں اور ڈھیر ساری مزید گرتی رہیں گی. تو دوستوں بھائی کے لیے ڈھیر سارے فلاورز ہو جائیں. تھینک یو مسٹر ہسلر صاحب. دیکھیں لائیو چیٹ آپ کی بھر گئی ہے فلاور سے اور آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہے. تو سر ویلکم آؤٹ آف دس ہیل. اس جہنم سے باہر نکلنے پہ بہت بہت آپ کا سواگت ہے. سر آپ کو میں ایگزامپل دوں گا, مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے جیسے کہ میں نے 100 بندوں کو قتل کر دیا ہو, مجھے جیل ہو گئی ہے اور مجھے سزائے موت. تو میں نے سر چیز آپ کو خدا چھوڑا جیل تو ہوئی ہے نہ آپ نے قتل کیا ہے. آپ کو یہ جو فیلنگ آ رہی ہے ہماری اسٹریم میں دیکھتے رہیں, جب بھی فیلنگ آئے ہماری اسٹریم لگا کے دیکھ لیں, کوئی سی بھی پرانی سی, اور آپ کی فیلنگ جاتی رہے گی. تھینک یو سو مچ. میں انشاءاللہ کوشش سوری یہ عادت ہوگی کہنے کی, میں کوشش کرتا رہوں گا. اس طرح کوئی سوالات جو مجھے نہ سمجھ آ رہی ہو میں آپ کی اسٹریم جوائن کر لیا کروں گا. جب مجھے بالکل ٹائم بتا دیں اسی دن آپ سر, ہفتے کے ہم دن. ہر سیٹرڈے کو آتے ہیں, لیکن آپ کا ہر جواب ہماری کسی نے اسٹریم میں ہوگا, میرے چینل پہ جا کے سرچ کریں گے آپ کو جواب مل جائے گا. اگر اوکے پھر بھی نہ ملا تو پھر آ جانا. اوکے سر, تھینک یو سو مچ سر, آپ بہت اچھے ہیں. سہیل بھائی آپ کو میرا بہت بہت سلام. آپ کی باتوں سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آدم بھائی آتے ہیں لیکن تھوڑا سا غصے میں ہوتے ہیں, پھر اس طرح کی بات کرتے ہیں اسلام کے کانگریچولیشن خلاف. میرے بھائی, کانگریچولیشن. جدھر غصے کا حق بنتا ہے وہاں غصہ کرنا بھی لازم ہوتا ہے میرے بھائی.
تو کانگریچولیشن، آپ اس گندگی سے باہر نکلے، اپنے آپ کو سیف رکھے اور دیکھیے گا، کوشش کریے گا جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہاں سے اگر کدھر دوسرے ملک میں جا کے سیٹل ہو سکتے ہیں تو نکل جائیے اور سکون سے اپنی زندگی گزاریے. ٹھیک ہے پیارے بھائی؟ بالکل سیلری میں بھی چلتا ہوں. میں بس بہت ڈرتا ہوں، ظاہر سی بات ہے. میرے قریبی جو ہے، مطلب قریب تو نہیں، گھر کے پاس بھی کچھ اس طرح ایتھیسٹ ہو گئے، agnostic، ان کو میرے سامنے مطلب مارا گیا. وہ میں بالکل اس سے فکر کرتا ہوں سے بہت. تو میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں تھینک گا. یو ہسکر آپ تو صاحب. تھینک یو. ہیو اے نائس ڈے. یو ٹو سر، ٹیک کیئر. وحید خان صاحب. ہائے سر، ہائے، کیسے سلمان ہیں بھائی آپ؟ جان؟ الحمدللہ. سر ذرا اتنی لے میں نہ بولیں سر. ایڈم بھائی آپ ہمیں بھول گئے ہو. صرف لے میں نہ بولیں، ذرا صحیح طریقے سے بولیں. مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ ٹون ہیں. ٹن مطلب؟ ٹن ٹنا ٹن ٹن. اچھا اچھا. ایڈم بھائی کل سر ابھی گفتگو، مسلمان ہیں، اسلام چھوڑ دیا؟ نہیں الحمدللہ مسلمان ہوں، اللہ کا شکر ہے. تو سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا اللہ جو ہے وہ بتوں سے پیار کیوں کرتا تھا؟ سر میں نا کل جو احادیث تھی اس کے بارے میں نے پوچھا، میں کہا میں ایڈم بھائی سے اس پہ تھوڑا سا بات کروں. ان بتوں کے بارے میں مجھے زیادہ علم نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ 360 کا کتنا بت کعبے کے اندر نہیں تھے. سر، آپ کے موسیٰ نے بت بنائے، آپ کے سلمان صاحب نے بت بنائے. اللہ بتوں سے اتنا پیار کرتا تھا. ہالو ہالو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پتہ ہے کہ اس کی والد بت بناتا تھا، اور حضرت نہیں ابراہیم علیہ نہیں، یہ السلام دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو دیکھو، آپ کا حضرت سلمان جنوں کے ذریعے بت بنواتا تھا، مجسمے بنواتا تھا. یہ دیکھو بڑی بڑی عمارتیں، مجسمے. آپ کا حضرت سلمان جنوں سے مجسمے بنواتا تھا ہیکل سلمانی میں. جی ہو سکتے ہو. تو ان کا تو پوری ہر چیز پہ حکومت تھی نا حضرت سلیمان کا. ہاں تو بت بنواتا تھا نا. تو اللہ تو بتوں سے نفرت کرتا ہے، تو بت کیسے بنوا سکتا ہے اپنے نبی سے؟